Namaskar. Welcome to episode 27 of the Satyagraha series. Every week, we try to bring forth the environmental, political, and social issues that impact us or that has the potential to impact us in near future. Last week, we had a dialogue on farmers' protest, where we discussed about the demands of the farmers, the reason of their protest, and we tried to provide a clarification on the ongoing narratives, false narratives by the government mouthpieces. Today, we thought of organizing a session to look at new farm laws from the angle of sustainability and equity. Sustainability, which can better be defined as sustenance as a function of time, and equity as the social cost of that sustenance. Now, uh, those some of us who are following the ongoing farmers' protest might have heard about the name of two major corporate houses, Adani and Ambani. Through today's dialogue, we will try to understand whether these laws allows the corporate houses like Adani and Ambani to usurp farmers' land, making them landless and laborers on their own land. Also, we'll try to take the questions which our viewers might be having on today's session. Now, with me, we have our eminent speaker, Dr. Shiri Kumar, who will be giving a presentation on today's session. To introduce Dr. Shiri Kumar, Dr. Shiri Kumar, he grew up in Udupi, Karnataka. Then he did his chemical engineering from the Karnataka Engineering College, which is now called as National Institute of Technology, Karnataka. And after that, he had a brief stint in ONGC in the Bombay Offshore Project. And after that, he did his master's and PhD from the most reputed college of India, that is the Indian Institute of Science, Bangalore. Then he started teaching in his own alma mater, and in 2007 he started Sangatya Commune, which is the objective of which is to build a model of a sustainable lifestyle and educate people on the principle of sustainability and justice. So I welcome you, Dr. Shirikumar, on today's session. Now, before starting, I have a personal question for you, which I feel is quite relevant to today's session. Now, you were earlier a chemical engineer, and so I can say that you had a brief glimpse of the exploitative part of the society. And if I'm not wrong, you were also a cogwheel of that society. So I want to know that why you left it all to become a farmer and choose the path of hardship as a farmer. Now, there are two assumptions I'm making, but that is you left it all, and secondly, life of farmer is hard. So I want to know from you whether my assumption is right or there is some another point which like common people like me are missing. Dr. Shri Kumar. Thank you, Ankit, for the very warm introduction. And should I ask start by answering your personal Dr. Shri Kumar, your voice is breaking. or should I go on to the topic and come to this later? Uh, Yeah, it is better now. okay. I was in the oil industry. In the unlikely event, in the worst case, if we cannot continue now, we have Hmm.
a recording we did in the afternoon, so that will be played. Then hopefully I can take questions at the end of it. But Yeah, right. let's try to do it live. Hmm. Yeah, Okay, I worked in the oil industry of all, which right. is very much part of the exploitative, extractive system, which is what drives our extractive system. I say it is Hmm. extractive because it is causing problem for the future and it is giving us a lot at the expense of the future. So anything that is extractive, see, we have human beings have the technology to obtain a lot from nature by at the expense of future survival, future security, right? So other animals don't have this technology. That's why they don't have to worry about sustainability. Hmm. We have obtained this power, we have acquired this power of technology, but we don't have responsibility to the same degree. It's only Hmm. when we use this power with responsibility we can have a sustainable society. This is not part of our schooling at all. All our schooling is aimed at preparing us for competition, and that is the kind of schooling I too obtained. So I went in that path for some time till I realized that there was something wrong. And when I realized something wrong, I become acutely uncomfortable with all the privileges we enjoy from Right. that privileged position. So that is the reason why I chose this path. So here in Sangatya Commune, we are not only trying to live a sustainable lifestyle, trying to build a group which is making our lives more and more sustainable, but we are also educating people on sustainability. We frequently conduct workshops on the issue of sustainability and equity. Hmm. Now, let's go on with today's talk. At the end, I hope there'll be time for questions. Yeah, right. Yeah. Uh, Many weeks ago, I had once given a talk in the same series on climate change and agriculture, climate crisis and agriculture. Hmm. After that, I had the intention to give a more detailed discussion on the issue of sustainability itself, understanding sustainability and the ethical and political implications of it. That has not Right. yet happened, but today, because there is a context of these new farm laws, uh, there was a suggestion that we should talk about this. So I decided to talk about how these new farm laws undermine sustainability and equity. Hmm. Hmm. Like in my last talk, I had prepared my slides in English, but I spoke in Hindi. I will do the same today also. Wherever the slides are not self-explanatory, I will also give an explanation in English. Okay. Right. So Right. now I'll move on to the slides. Yeah. Hmm. So uh, अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये नए कानून जो हुए हैं खेती के क्षेत्र में, उससे सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी पर क्या असर पड़ता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सस्टेनेबल का मतलब स्थायी है, यानी हम अपनी ज़रूरतें जैसे से अब हम जो ले रहे हैं वही संसाधन आने वाली पीढ़ियों को भी अगर उपलब्ध होता है तो वो व्यवस्था सस्टेनेबल है। अगर उपलब्ध नहीं होता है तो सस्टेनेबल या स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो ये एक स्थायी व्यवस्था की दृष्टि से और समानता की दृष्टि से अभी जो कानून बने हैं वो कैसे मारक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन वो कानून के बारे में कहने से पहले अभी की परिस्थिति क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। अभी की जो आर्थिक असमानता जो है इतिहास में कभी इतना ज़्यादा नहीं था, और इतिहास में हमेशा हमारे समाज में, मानव समाज में बहुत तरह के भेदभाव और हिंसा रही है, और वो अब पूरी तरह से गया नहीं है और कुछ क्षेत्र में ये बढ़ रहा है। यानी ये जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या आर्थिक आधार पर जो असमानता है और हिंसा भी है, वो कुछ जगह में, कई जगह में दुनिया में बढ़ रही है। और हमारी आर्थिकता जो है अभी गिरावट की अवस्था में है।
उसके अलावा हमारे वातावरण में जैसे हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण है। हमारे मिट्टी की फलवत्ता कम हो रही है और मिट्टी ही बह के जा रही है, और भूजल का स्तर जो है वो नीचे जा रहा है लगातार। जैविक विविधता का नष्ट हो रहा है, और हमारे समाज अब और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे संसाधनों पर निर्भर है जो धरती में अपने आप फिर से बनते नहीं हैं, यानी उनका नवीकरण नहीं होता है, और ये संसाधन जल्दी खत्म हो रहे हैं। उसके और अलावा, और ये इसी संसाधनों के उपयोग के कारण हमारे धरती पर सिर्फ प्रदूषण नहीं हुआ है, हमारे जलवायु में भी बदलाव हो रहा है। वो एक अब इमरजेंसी की अवस्था में पहुंच गया है। अब असमानता को देखेंगे तो ये 2017 में एक अध्ययन हुआ था जिसके अनुसार हमारे देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास 77% संपत्ति है, और उसी साल में जो संपत्ति बन गई थी, उस संपत्ति में, नई संपत्ति में हमारे सबसे अमीर 1% लोगों का हिस्सा 73% था। यानी ये असमानता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और 5 साल की कम उम्र के बच्चों में 42% बच्चों में कुपोषण है, और हमारे देश में बेरोजगारी है जो है वो पिछले 45 साल में अब सबसे ज़्यादा है। पिछले 25 साल में 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और ये किसानों के इस संघर्ष का कारण ये हमारी आर्थिकता है, आर्थिक नीति है। लेकिन उसके अलावा ये हमारे जलवायु में जो बदलाव हुए हैं वो इस संकट को और भी खराब कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखेंगे तो ये जलवायु में बदलाव का कारण भी हमारे आर्थिकता है, और उसके कारण खेती मुश्किल हो रहा है, और खेती मुश्किल यानी ये एक दूसरे का पूरक है। जैसे ये हमारे आर्थिक नीति के कारण ये खेती जो है इस पर बुरा असर पड़ा है, वो मैं बाद में और भी थोड़ा विस्तार से कहूँगा। और उसी नीति के कारण हमारे क्लाइमेट क्राइसिस भी है, और क्लाइमेट क्राइसिस के कारण ये खेती करना और भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस संदर्भ में जैसे ये सब समस्या देखेंगे तो हमें लगता है कि हमें अभी खेती को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और हमारे व्यवस्था को ज़्यादा स्थायी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी नीति क्या है, उसके बिल्कुल उल्टा है। अभी जो नए कानून बनाए हैं उसमें उनके क्या परिणाम होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको मंडी बोलते हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। सरकार एक्चुअली कह रही है कि किसान लोग सिर्फ मंडी में नहीं, दूसरे एजेंट्स को भी अपना उत्पादन बेच सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तो हमेशा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बेच सकते थे। लेकिन अभी एपीएमसी के बाहर बेचना ज़्यादा आकर्षक कर रहे हैं क्योंकि उसमें कर नहीं लगता है। तो इसके कारण सभी लोग एपीएमसी के बाहर बेचने लगेंगे तो धीरे धीरे एपीएमसी बंद होने क्या है साध्यता है। और अगर एपीएमसी नहीं है तो बाद में दूसरे एजेंट्स को ये जिस दाम पर खेती का उत्पादन खरीद रहे हैं उसको कम करना बहुत आसान होगा। यानी किसानों को अपने उत्पादन के लिए योग्य कीमत मिलना मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक खेडूत और बड़ा
बड़े कंपनी के बीच में होता है तो वो उसके सभी टर्म्स जो है बड़े कंपनी के पक्ष में होगा, क्योंकि वो ज़्यादा अधिकार की पोजीशन में है। और उससे ये भी हो सकता है कि इनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण धीरे धीरे अपनी ज़मीन भी कॉरपोरेट्स को खो जाने की शक्यता है। तीसरा ये है कि ये इसके आहार के वितरण और बेचना, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएगा और उसको डीरेगुलेट करेंगे। डीरेगुलेट करने का इसके से परिणाम ये होता है कि उसको मैनिपुलेट करना उनको बहुत आसान होगा। यानी इसके फूड प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये सब अब इन तीनों के कारण और क्या असर पड़ते हैं। अगर एपीएमसी कमज़ोर होता है तो उसके कारण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारे राशनिंग सिस्टम जो है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। और अगर खेती पर सब बड़े बड़े कंपनी के खेती के ज़मीन पर भी और खेती कर यानी खेती करने के क्षेत्र में अगर कंट्रोल सब कॉर्पोरेट्स के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, वो लोग अपने मुनाफा के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर करेंगे, फैक्ट्री फार्मिंग जैसा करेंगे। उसमें बहुत बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे और कम लोगों को मजदूरी के लिए रख के अपने मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी, दूसरा ये संपत्ति का केंद्रीकरण होगा। उसके अलावा उस तरह के खेती के कारण हमारे ये मिट्टी की फलवत्ता जो है वो कम होता जाएगा, और अगर ऑलरेडी कम हुआ है तो वो उसको इम्प्रूव करने की शक्यता नहीं रहेगी। और इसी तरह की खेती में अगर बड़े बड़े मशीन और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके ही खेती करेंगे तो फर्टिलाइजर से भी क्लाइमेट चेंज को योगदान मिलेगा, फर्टिलाइजर से भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यानी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बजाय एग्रीकल्चर खुद भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सब अगर देखेंगे तो ये नए कानून जो है सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, हम सब की समस्या है। तो इसके अभी थोड़ा समझने के लिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसका बहुत विस्तृत डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं एक यानी ब्रीफ में कहूँगा। हमारे अभी की अर्थव्यवस्था जो है हमेशा बढ़त मांगता रहता है, यानी जीडीपी ग्रोथ डिमांड करते रहता है। वो अभी के अर्थव्यवस्था में एक कंपलसरी है। वो अगर ग्रोथ उसमें नहीं होता है, आर्थिकता में वृद्धि होती नहीं है, तो बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगारी को कंट्रोल में रखना है तो आर्थिकता में बढ़त होता रहना चाहिए। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है धरती के जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण की व्यवस्था है, उसके अंदर काम करता है। इसलिए इस पर्यावरण व्यवस्था के जो भी मिति है उस मिति के अंदर ही काम करना चाहिए। धरती में हम जितना मांगते हैं उतना अनलिमिटेड देने की क्षमता नहीं है। हम जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको फिर से बनाने में यानी नवीकरण करने की क्षमता में वो सीमित है। उस सीमा के अंदर ही हमारी अर्थव्यवस्था चलता है तो वो सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन इस सीमा को गिनती में नहीं लेके हमेशा बढ़त की कोशिश करती है तो वो अनसस्टेनेबल होता है। हम जो पर्यावरण की समस्या जो अब अनुभव कर रहे हैं और क्लाइमेट की क्राइसिस जो अनुभव कर रहे हैं, उसका मूल इसमें है कि हमारी अर्थव्यवस्था अनसस्टेनेबल है। ये अनसस्टेनेबिलिटी का वो सब एक लक्षण है। क्लाइमेट चेंज के अलावा बहुत सारे और भी लक्षण हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम वो सब आज
नहीं चर्चा कर सकते हैं, बाद में कभी करेंगे। तो ये मुख्य कारण है अनसस्टेनेबिलिटी का। और हमारे सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से हमारी अब की स्थिति क्या है वो समझने के लिए ये दो टर्म्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी को समझना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे मानदंड है सस्टेनेबिलिटी के, लेकिन ये समझना थोड़ा आसान है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब यह है कि हम जो भी रिन्यूएबल चीज़ हमारे धरती से यूज़ करते हैं, जो नवीकरण हो सकता है वैसी सामग्री, उसका नवीकरण के लिए पृथ्वी का कितना प्रोडक्टिव एरिया चाहिए, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका नवीकरण के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए, यानी हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा है। हम हमारी व्यक्तिगत इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे जीवन शैली के आधार पर, या एक प्रदेश का, एक देश का, या पूरे विश्व का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह बायो कैपेसिटी जो है, हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको, उसके नवीकरण के लिए कितना प्रोडक्टिव एरिया उपलब्ध है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो हमारे एक्चुअल लाइफस्टाइल के अनुसार कितना प्रोडक्टिव एरिया चाहिए, लेकिन बायो कैपेसिटी जो है कितना एरिया उपलब्ध है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अगर बायो कैपेसिटी से ज़्यादा है तो हमारी व्यवस्था अनसस्टेनेबल है, यानी उसमें हमारी व्यवस्था हमारे इसमें व्यवस्था में एक इकोलॉजिकल डेफिसिट है, इकोलॉजिकल डेफिसिट। लेकिन बायो कैपेसिटी अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ज़्यादा है तो हमारे पास इकोलॉजिकल सरप्लस है। और हमारे सुरक्षा के लिए इकोलॉजिकल सरप्लस ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है। अगर सब कुछ ठीक है भी, कभी कभी अकाल हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशंस को सहन करने की क्षमता तभी हो सकता है जब हमारे पास बायो कैपेसिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में ज़्यादा से ज़्यादा है और इकोलॉजिकल सरप्लस है। लेकिन अभी की परिस्थिति क्या है, ये पूरे विश्व के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी, ये हरा जो लाइन है ये बायो कैपेसिटी का है, और ये पिंक लाइन जो है वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। लगभग 1970 में ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायो कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया है, तब से वो ज़्यादा ही रहा है, यानी हमारे इकोलॉजिकल डेफिसिट अब इतना है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायो कैपेसिटी से इतना ज़्यादा है। जब ये रिन्यू नहीं होता है फिर भी हम हमारा इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि जो हमें नहीं मिलता है उसको हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आधार पर। मैंने कहा हमारे अर्थव्यवस्था अब मुख्य रूप से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर हो रहा है। उस Shri ji, your voice is breaking. Hello. मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत, पेट्रोल, गैस, ये सब। हाँ, डू यू हियर मी? हेलो। अब yeah, now we can हाँ, hear you. ओके So ओके। you were actually we missed you from that point कि आपने कहा कि हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है because of we हाँ, are fulfilling a demand from non-renewable resources. ओके ओके ओके। इस पॉइंट से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ रहा है, ये इसका मुख्य कारण यह है हमारे अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि होता रहा है। उसके लिए हम ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन यूज कर रहे हैं। जितना रिन्यू हो सकता है उससे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन यूज कर रहे हैं, लेकिन जितना रिन्यू हो सकता है उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उसका मतलब यह है कि जो हमें स्वाभाविक रूप से धरती से नहीं मिलता है उसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आधार पर। और हमारी अर्थव्यवस्था अभी मुख्य रूप से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ही चल रहा है। उसमें सबसे मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से सिर्फ ऊर्जा नहीं, हम इंडस्ट्री से जो भी चीज़
बनाते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों के लिए कच्चा माल भी उसी से आता है। इसलिए जो हमें धरती से स्वाभाविक रूप से नहीं आता है उसको हम इंडस्ट्री से प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको ये लिए भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं। तो भविष्य में हमारे लिए इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और वो प्रॉब्लम अभी होने लगा है। इसी का एक लक्षण है क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये पूरे विश्व का है। अब हम भारत का देखेंगे तो परिस्थिति उससे भी खराब है। 1961 में भी हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ज़्यादा था और अभी और यानी हमारा इकोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो हमारे बायो कैपेसिटी का 172% है और ये इकोलॉजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। पूरे विश्व का देखेंगे तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायो कैपेसिटी से 1.7 टाइम्स ज़्यादा है। उसका मतलब है पूरे विश्व का जो इकोलॉजिकल डेफिसिट है जो वो बायो कैपेसिटी से 70% ज़्यादा है। ये सब जब एक से ज़्यादा है तो होता है, उसका मतलब है जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं, धरती से ले रहे हैं, वो सब पूरा करने के लिए उतना हमारे मांग पूरा करने के लिए एक धरती काफ़ी नहीं है। पूरे विश्व के लिए 1.7 धरती चाहिए। लेकिन ये एक एवरेज है। हम अमेरिका जैसे बहुत अमीर देशों के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखेंगे और उनमें तो इकोलॉजिकल डेफिसिट इससे बहुत ज़्यादा है। हम सभी अमेरिकन जैसे जीने की कोशिश करेंगे तो हमारे इस्तेमाल को नवीकरण करने के लिए लगभग 8 धरती चाहिए होगा। तो लेकिन अभी भारत का देखेंगे तो भी इतना इकोलॉजिकल डेफिसिट है और धरती का भी इकोलॉजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये सब हमारे अभी की वास्तविकता है। तो इससे हमें लगता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए जीडीपी ग्रोथ नहीं, बल्कि बायो कैपेसिटी को रीबिल्ड करना। बायो कैपेसिटी को रीबिल्ड करना है तो हमें और अभी इतना इकोलॉजिकल डेफिसिट हुआ है जीडीपी ग्रोथ के कारण, और अब बायो कैपेसिटी को बिल्डअप करना है तो उसका मतलब है हमें जीडीपी ग्रोथ नहीं करना चाहिए, जीडीपी को कम करना चाहिए। लेकिन अभी की अर्थव्यवस्था में क्या है, जीडीपी में बढ़त नहीं होता है तो बेरोजगारी होती है। तो उसका मतलब है हमारे जब जीडीपी कम होता है उस समय भी सभी को एक जीवनोपाय यानी आजीविका मिलना चाहिए। उस तरह से हमें जीडीपी कम करना चाहिए। उसके लिए एक शब्द है आजकल, उसको डी ग्रोथ कहते हैं। हम ग्रोथ की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें विफल होते हैं तो बेरोजगारी होती है। लेकिन हमारे उद्देश्य ही डी ग्रोथ है तो हम आर्थिकता को कम छोटा कर सकते हैं लेकिन सभी को आजीविका का गारंटी कर सकते हैं। वो हमारी कोशिश होना चाहिए और उसमें खेती की बहुत बड़ी भूमिका है। इस संदर्भ में एक और चीज़ कहना चाहिए, जब हमारे पूरे व्यवस्था फॉसिल फ्यूल्स के आधार पर चल रही है तो स्वाभाविक रूप से खेती दूसरे इंडस्ट्रीज से थोड़ा डिसएडवांटेज में रहता है। यानी मुनाफा बढ़ाने की कोशिश में दूसरे इंडस्ट्रीज में जितना अवकाश है उतना खेती में हो ही नहीं सकता है, हम जितना भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे। अभी के हमारे समाज में खेती में भी फॉसिल फ्यूल्स का बहुत उपयोग हो रहा है और बाकी इंडस्ट्री में भी। लेकिन बाकी इंडस्ट्री में हम अगर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इनपुट बढ़ा सकते हैं। जितना इनपुट बढ़ाते हैं उतना उत्पादन बढ़ेगा और उतना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्योंकि मशीनों से काम चल रहा है हमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत उतना ही ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी उत्पादन 10 गुना बढ़ाना है तो 10 गुना ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह उत्पादन 10 गुना बढ़ाना है तो 10 गुना ज़्यादा लोगों को नौकरी में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खेती में वैसा नहीं है।
हम जितना भी इनपुट्स डालेंगे उतनी ज़मीन में जितना उत्पादन हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी इनपुट बढ़ा के हम आउटपुट बढ़ा नहीं सकते हैं। ये फर्क होने के कारण स्वाभाविक रूप से मुनाफा बढ़ाने की दृष्टि से बाकी इंडस्ट्री एक एडवांटेज में है। उसके कारण लोगों को हमेशा खेती छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहन भी मिला है और अब मजबूरी भी आ गई है। इसलिए हमेशा हमारे माइग्रेशन जो है, हमारे वर्कफोर्स का माइग्रेशन गांव से शहर की तरफ और खेती से दूसरे क्षेत्र की तरफ रहा है। और क्योंकि खेती में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग है, खेती करने के लिए जो जितने लोग चाहिए वो भी कम हो गया है, क्योंकि यहाँ भी हम बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब का असर खेती पर भी पड़ा है और हमारे क्लाइमेट पर भी पड़ा है। अब और इसमें असमानता बड़ा है, क्योंकि खेती में जितने लोगों को रोजगारी देने का अवकाश है वो और किसी भी क्षेत्र में नहीं है। और सभी क्षेत्र में जब फॉसिल फ्यूल्स के आधार पर ही प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत कम मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो हर क्षेत्र में हम फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग के कारण एक नियमित प्रोडक्शन के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है वो कम होता जाता है। तो उससे बेरोजगारी बढ़ती है और संपत्ति का केंद्रीकरण ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मुनाफा जो फॉसिल फ्यूल्स के यूज से आता है वो पूंजीपति को मिलता है। तो हमारे समानता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से और नेचुरल रिसोर्सेस बढ़ाने की दृष्टि से इस तरह का जो प्रकृति के संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको रोकने की कोशिश होना चाहिए। हमारे सरकार की नीति लेकिन क्या है, सरकार भी कह रहा है कि जीडीपी में खेती का योगदान कम है, इसलिए लोगों को खेती छोड़ के इंडस्ट्री में जाना चाहिए। इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल यूज के लिए टैक्स नहीं होना ही एक स्वाभाविक, एक सही देखेंगे तो एक सब्सिडी है। यानी ये नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों का एक्सप्लॉयटेटिव यूज के लिए कोई पेनल्टी नहीं होना एक सब्सिडी है। लेकिन सरकार इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए और भी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। उनको ज़मीन, सस्ते ज़मीन देने के रूप में, टैक्स कंसेशन देने के रूप में, बहुत कम इंटरेस्ट में लोन देने के रूप में, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के रूप में। तो ये सब प्रोत्साहन के कारण खेती और भी ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गया है और यही कारण है खेती इतना संकट में होने के कारण। ये मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बताऊंगा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है। Agriculture has an inherent disadvantage in an economy powered by fossil fuels because when fossil fuels are used for production, a given increase in production can be achieved without a proportionate increase in land use or proportionate increase in workforce. Whereas that is not possible in agriculture. Even when you are using fossil fuels and artificial chemicals, you cannot increase output by proportionately increasing input. You cannot increase output with the same land area, right? So agriculture is at a disadvantage due to this, and if there is no penalty on the use of non-renewable resources and no penalty on the pollution caused by the use of non-renewable resources, industry will naturally grow at the expense of agriculture. In the interest of sustainability as well as equity, actually unsustainable use of natural resources should be taxed, as well as pollution. They should be taxed even for the pollution they cause. This is necessary for providing a level playing field for agriculture. And also, since agriculture is the largest employer of manpower, it also favors equity. So in the interest of sustainability and equity, exploitative use of natural resources should be penalized.
But the policy of our government is just the opposite. They argue that the contribution of agriculture to GDP is low, so we should encourage other sectors of the economy. So in addition to the subsidy we have, in the absence of penalty for exploitation, we have also explicit subsidies in the form of cheap land, cheap infrastructure, tax holidays, and low interest loans. So this has further marginalized agriculture. Now agriculture is अब खेती का महत्व जो है वो सिर्फ हमारे आहार का उत्पादन नहीं है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगारी देती है। और उसके अलावा अभी तक हमारे पर्यावरण में जो नुकसान हो चुका है हमारी धरती के पर्यावरण में, उसको सही करने में एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सभी दृष्टि से एग्रीकल्चर में जो लोग हैं उनको संकट में नहीं डालना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। एग्रीकल्चर को सपोर्ट देना चाहिए हमारे अभी के असमानता कम करने की दृष्टि से और भविष्य के सुरक्षा की दृष्टि से। और जीडीपी ग्रोथ, ये सब अभी जो समस्या हो रहा है मैंने कहा उसका मुख्य कारण है जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ अचीव करने के लिए सरकार जो बड़े बड़े पूंजीपति है, पूंजीपति के उनके मुनाफा अधिक करने की जो कोशिश है उसी को जीडीपी बढ़ाने का साधन बनाया है। तो पूंजीपति को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के द्वारा हमारी जीडीपी बढ़ा रहा है। इसलिए ये सब ग्रोथ का जो फायदा है उन्हीं को मिल रहा है और हमारे समाज में असमानता बढ़ रही है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ और हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई संबंध है क्या, ये देखेंगे तो जहाँ हमारे जीडीपी बहुत कम है वहाँ थोड़ा जीडीपी बढ़ाने से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक मापदंड है, उसमें काफ़ी बढ़त होता है। लेकिन ये पर कैपिटा जीडीपी $10,000 से ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा जीडीपी बढ़ने से एचडीआई में बहुत कम फर्क पड़ता है। लेकिन इतना जीडीपी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का बहुत इस्तेमाल चाहिए। इसी तरह का एक और ये है, ये दोनों ग्राफ मैंने पिछले बार भी दिखाया था लेकिन बहुत सारे लोग अब नए होंगे जिन्होंने ये देखा नहीं है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी जब यहाँ ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 एक अच्छा माना जाता है। 0.8 के ऊपर जो एचडीआई जो है वैसे देशों के, इसमें हर एक 0.1 देश है, ये सभी देशों का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। उस समय 2.1 हेक्टेयर्स पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को सस्टेनेबल मान रहे थे। और ये सब जो है जो बहुत हाई एचडीआई है, ये लोग सब अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा संसाधन ले रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ता है सस्टेनेबल लेवल के अंदर ही, एचडीआई में बहुत बढ़त हो सकता है। उसके बाद इतना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ाने में एचडीआई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन उसमें क्यूबा एक देखेंगे, इसमें उनका इकोलॉजिकल पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 2.1 से कम था और ये एचडीआई 0.8 से बहुत ज़्यादा था। तो उसका ये हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। इसका कारण ये है कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर कोलैप्स होने के कारण क्यूबा को स्वावलंबन पर बहुत जोर देना पड़ा था। इसलिए उन्होंने खेती को बहुत महत्व दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत महत्व दिया। सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, उसमें भी जिसको पर्माकल्चर बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक, साधारण ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी बेहतर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। यानी हम नेचर के खिलाफ कुछ भी काम नेचुरल जो प्रक्रिया है धरती पर और मिट्टी में, उसको नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं खेती में, और नेचर के साथ काम और
आसपास के परिसर है उसमें मेल होना चाहिए। तो इस तरह का इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर करने से उनको इकोलॉजिकल सर्विसेज यानी हमारे पर्यावरण में जो सेवाएं अपने अपने आप हमें अपने आप मिलना चाहिए, उनकी उपलब्धता बढ़ती है, तो हमारी ज़रूरतें पाने के लिए जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। तो एक कारण ये है उन्होंने अपना बायो कैपेसिटी बढ़ा दिया। दूसरा ये है कि उनके समाज में असमानता बहुत कम है। ये दो कारणों से उनका कम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में भी एचडीआई बढ़ गया है। हमारे लिए एक्चुअली यही आदर्श होना चाहिए। हमसे ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी होने वाले अमीर देश हमारे लिए आदर्श इसलिए नहीं है क्योंकि उस तरह होने के लिए धरती में अब कैपेसिटी नहीं रहा है। तो ये अभी की परिस्थिति है, लेकिन यानी अभी हमने जो देखा है उसमें से हमें मालूम होता है कि हमारे प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। बायो कैपेसिटी बिल्डअप होना हमारे प्रायोरिटी होना चाहिए और सभी को रोजगारी देना, असमानता कम करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन सरकार जो अभी नीति बना रही है जिसमें ये फार्म ये खेती के कानून जो नया बनाया है उसमें खेती के कंट्रोल भी कुछ ही लोगों के हाथ में होगा। इसलिए इससे जो बहुत अमीर लोग हैं हमारे रिच 1% लोग हैं संपत्ति में, उनका हिस्सा और भी बढ़ेगा और असमानता बढ़ेगा। और खेती भी कमज़ोर होने के कारण वो उस तरह की खेती में, और खेती भी उनके हाथ में इंडस्ट्रियल खेती होने के कारण हम बायो कैपेसिटी को बिल्डअप करने की क्षमता नहीं रहेगी। यानी हमारे समानता के दृष्टि से और भविष्य की सुरक्षा के दृष्टि से जो नीति होनी चाहिए उसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो हमारे अभी की नीति ये होना चाहिए कि जहाँ नेचुरल इकोसिस्टम्स है वहाँ हमें हमारे इंडस्ट्री या शहरों का एनक्रोचमेंट बंद करना चाहिए, और जहाँ थोड़ा जंगल डिग्रेड हो गए हैं उनको फिर से रिकवर होने देना चाहिए, और खेती का ज़मीन को इंडस्ट्रीज दूसरे उद्योग के लिए डाइवर्ट करना बंद करना चाहिए। अभी जो लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं और खेती छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, इस ट्रेंड को रिवर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि खेती में जिस तरह जो रोजगारी के अवकाश है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है उतना ही संसाधनों का यूज़ करके, और हमारे परिसर को, हमारे पर्यावरण के डैमेज को रिपेयर करने में वो सिर्फ खेती के द्वारा ही कर सकते हैं। तो अभी वैसे हमारे कार्बन फुटप्रिंट यानी हर एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्बन एमिशन होता है हमारे वायुमंडल में, भारत में वो विश्व के एवरेज से बहुत कम है। लेकिन इस कारण के लिए हमारे कोटा यूज़ करना हमारे कोशिश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमारे एचडीआई बहुत कम पर कैपिटल जीडीपी के साथ ही बढ़ाने का, और एचडीआई जो है कम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से बढ़ाने का, और बायो कैपेसिटी बिल्डअप करने का। क्योंकि जैसे मैंने क्यूबा का एक एग्जांपल दिया, हम अगर बायो कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो हमारे एचडीआई बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जीडीपी की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो बहुत समय से लोग अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और अभी हमारे भविष्य की दृष्टि से वो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, हमारे एग्रीकल्चर का उद्देश्य, खेती का उद्देश्य सिर्फ खाने का उत्पादन करना नहीं, उसके अलावा मिट्टी की फलवत्ता बढ़ाना,
पानी की उपलब्धता बढ़ाना और जैविक विविधता बढ़ाना, ये सब होना चाहिए। ये सब इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर में होता है। लेकिन उसके लिए सरकार की क्या नीति होना चाहिए? अभी तो जीडीपी ग्रोथ के लिए लोगों को एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया है, और एग्रीकल्चर भी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए प्रोत्साहन दिया है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और मशीनरी यूज करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। अभी हमारे नीति ऐसे होना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी देने के बजाय उसमें भी जो कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि वो भी फॉसिल फ्यूल से आता है, उसको टैक्स देना चाहिए, और वो टैक्स का रेवेन्यू जो है वो उससे खेती करने वालों को आकर्षक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, जब अब तक जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे थे, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू करेंगे तो कुछ समय के लिए मिट्टी में कोई फलवत्ता नहीं होने के कारण उत्पादन कम हो सकता है, तो वो, लेकिन कुछ समय के बाद वो रिकवर होगा। वो रिकवर होने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय के लिए एक सेफ्टी नेट देना चाहिए किसानों को, उनको मिनिमम इनकम गारंटी देना चाहिए। और हमारे खेती की ज़मीन का की वैल्यू जो है वो सिर्फ उससे जो आर्थिक लाभ होता है उस दृष्टि से नहीं देना चाहिए, उसका हमारे पर्यावरण के लिए उसका जो महत्व है उसके आधार पर भी हमें उसका वैल्यू देखना चाहिए। और हर एक व्यक्ति परिवार के साथ लैंड उतना होना चाहिए जिस इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर के लिए जितना लैंड होल्डिंग उचित है उतना लैंड होल्डिंग सभी को उपलब्ध करने का लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए। लेकिन अब जो है सभी ज़मीन कुछ ही कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाने की यानी वो कंट्रोल Shiriji, your voice is breaking. Hello. और हेलो। कैपेसिटी बढ़ाना है तो हमें धरती का जमीन का इस्तेमाल जो है उसका भी प्लानिंग वाटरशेड के स्तर होना चाहिए। इन हर एक वाटर बॉडी के वाटरशेड होता है। there is about 5 minutes left now. 4 minutes left this presentation. Do you hear me? हाँ श्रीजी, Hello. आवाज आ रही है Hello. आपकी? या हेलो, कैन यू हियर मी? Hello. हेलो। Hello. Pavji, can we play the recording of Shiriji? हेलो बॉबी जी। I think we Yes, lost. Ankit. Yeah, yes, we can play the recording, but it might be a bit difficult in terms of. He was in third last slide. He was on third last slide. We can play from there. Acha, okay. Just let me know, right? Okay. और जैविक विविधता बढ़ाना चाहिए। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए जब खेती करते हैं उसको इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हमें Should I forward it a bit more? I think it's Acha.
What about this one? Is it done? This for the slide from the first point we can play. Okay. So for our viewers, क्या महत्व है उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए और This हर is okay, right? yeah, this is okay, right? Okay. व्यक्ति के पास जितना लैंड है वो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर के लिए लायक जितना है वो होना चाहिए। वो अलग अलग प्रदेश में इसका विस्तार बढ़ सकता है, यानी बदल सकता है। सूखा क्षेत्र में अलग है, बहुत ज़्यादा बारिश के क्षेत्र में अलग है वगैरह। लेकिन हर प्रदेश में इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर के लिए जितना लैंड होल्डिंग उचित है उतना लैंड होल्डिंग होना चाहिए। उस तरह का हमें लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए। अभी का फार्म सेक्टर में मार्केटिंग में रिफॉर्म्स, सुधार, जिसको सुधार बोल रहे हैं, रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, और खेती लैंड यूज में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें लैंड साइज, लैंड होल्डिंग बड़ा करने के, कंसोलिडेट होने के लिए उचित है, यानी अनुकूल है। यानी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में लैंड होल्डिंग पे जाने की दिशा में जा रहा है। हमें एक्चुअली इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर के लिए जितना लैंड होल्डिंग चाहिए उतना ही पर्यावरण को ठीक करना की दृष्टि से नहीं, समानता की दृष्टि से भी यही ठीक है। और ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो माइक्रोशेड, वाटरशेड के स्तर पर होना चाहिए। हर एक कोई भी वाटर बॉडी में जहाँ जितना एरिया से पानी आता है उस एरिया को हम वाटरशेड बोलते हैं। एक बड़ी नदी का वाटरशेड बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक बड़ी नदी के बहुत सारे छोटे छोटे शाखाएं होते हैं। हर एक शाखा का एक वाटरशेड होता है। तो हर एक वाटरशेड में उचित लैंड यूज कैसा होना चाहिए उस आधार पर लैंड यूज प्लानिंग करना चाहिए। यानी जहाँ पेड़ लगाने के लिए उचित है पेड़ लगाना उचित है, जहाँ पानी को स्टोर करना उचित है, कहाँ जहाँ अनाज उगाना उचित है, ये सब माइक्रो वाटरशेड के लेवल में होना चाहिए। हमें सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि में देखेंगे तो उस तरह का यूज करने के लिए सामूहिक खेती करना, अभी का लैंड यूज में सब प्राइवेट लैंड है, तो हर एक लैंड का लैंड यूज प्लानिंग करना है तो लैंड को, बहुत सारे लोगों के लैंड को इकट्ठा करके सहकार कोऑपरेटिव बेसिस में खेती करना चाहिए। हमारे नीति भी इनके अनुकूल होना चाहिए। और खेती में जब मजदूरी दे के खेती करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे श्रम जो है, श्रम के बंटवारा से खेती करेंगे तो वो ज़्यादा यानी इकोनॉमिकली वायबल भी होता है, आर्थिक दृष्टि से भी वो सही होता है। अभी मैं कंक्लूजन में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अभी की परिस्थिति जो है वो इतिहास में कभी नहीं था। एक यानी एक पूरे विश्व के सभ्यता का पतन होना इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसलिए हम अभी जो नीति अपनाते हैं उसका अपने इससे पहले की नीति के सफलता के अनुसार नहीं कर सकते हैं। हमें नए चॉइसेस करना ज़रूरी है अभी के परिस्थिति के लिए। और हमारी नीति, ये मैंने कहा है ऑलरेडी कि हमारे माइग्रेशन जो है, वर्कफोर्स शहर से गांव की तरफ और दूसरे क्षेत्र के से खेती की तरफ जाना चाहिए। और खेती में भी इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर करना चाहिए। और क्यूबा ने जो यूएसएसआर की कोलैप्स के समय जिस तरह की नीति अपना के अपने समस्या का हल ढूंढा है, उससे हमें सबक सीखना चाहिए
क्यूबा को ये समस्या सडनली आ गया था, हमें उतना सडन दिख नहीं रहा है, लेकिन उतना ही अर्जेंसी हमें क्यों होना चाहिए, क्योंकि 10 साल के अंदर हमें हमारी निर्भरता फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करना ज़रूरी है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इसमें क्या मुसीबतें आ सकते हैं। अभी तक जो असमानता के जो भी संस्था हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो भी असमानता है उससे लड़ने में हमें अभी तक जो भी सफलता मिली है वो आर्थिक वृद्धि के समय में मिला है। तो आर्थिक वृद्धि के कारण जो लोग अमीर हैं उनको ज़्यादा खोने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अभी जब हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें इकोनॉमी को छोटा करने की ज़रूरत है, जब इकोनॉमी छोटा हो रहा है तब इस तरह के जो भी जीत हासिल हुए हैं उनको बचा के रखना हमें बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी की भूमिका नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, उसमें है, लेकिन मुख्य रूप से जो है हमारे मूल्यों के और हमारी राजनीति के, हमारे मूल्य और राजनीति में इसके लिए जो बदलाव चाहिए वो बदलाव हम नहीं करेंगे तो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये समस्या का हल नहीं हो सकता है। जब सरकार सभी कंट्रोल कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहा है, वो हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे सभी समस्या के हल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही होगा। लेकिन जब तक ये वैल्यूज़ और पॉलिटिक्स हमारे में हम सुधार नहीं करेंगे, तब असल में टेक्नोलॉजी से हमें ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा शक्ति मिलती है। वो शक्ति के साथ हमारे साथ सही वैल्यूज़ नहीं हैं, उस शक्ति का दुरुपयोग ज़्यादा होता है। हमारे अभी के क्लाइमेट क्राइसिस वगैरह का जो कारण है वो उसी शक्ति का अनुचित उपयोग से हुआ है। इतना कह के मैं ये अब समाप्त करता हूँ। अब इस पर चर्चा होगी तो अच्छा होगा। धन्यवाद। हेलो हेलो Hello. Hi, Uh, I am Shirik. just back. You We just concluded your presentation also. So, okay, now we can have the discussion at least. right. There was only about 5 minutes left. Right. Firstly, it was very actually a well presented presentation. Also, आपने बहुत simple terms में I think explain किया कि कैसे agriculture is the I think only industry, if I can say it, industry from which we can have an equitable and sustainable society. And also I want to understand more कि जैसे आपने बताया क्यूबा का केस स्टडी दिया, इकोलॉजिकल डेफिसिट के बारे में बताया, सो उसमें आपने चीज यूज की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट? आई थिंक वो आपने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी शो किया था. सो अकॉर्डिंग टू दैट इंडेक्स, ओके, जीडीपी इज एसेंशियल टू have a HDI of certain, okay, GDP impacts HDI on certain extent. After that, it is meaningless. मतलब GDP growth और HDI का relation is not dependent on that. So फिर हम जैसे if we take example of India, how much of GDP should we ensure so that we can have a good HDI? Like to have a GDP from fossil fuel industry up to a certain extent, and after that we should have a degrowth. But this is what you are trying to convey from that graph, HDI. See, it's difficult to put a number to it. It's difficult to put a number. Even in that graph, GDP, per capita GDP was written in terms of purchasing power parity. Dollars purchasing power parity. It was PPP within brackets. Okay. So measuring something in one currency is a little problematic and it changes with time. But there is another issue with this. How much, at what GDP will you have a good HDI depends a lot on how much of ecological services are available without money. The poorer the environment, the more loss of ecological services, and they have to be created artificially.
For example, see, we use water. As we use water, fresh water becomes available in nature. That is an ecosystem service for which we don't have to pay. But if we use that ecosystem service, then we will have to use artificial means for purifying water. In that case, this water is not available free, right? Similarly, comfortable living conditions. If we have a good environment, we don't need fans or air conditioners. That means a good living environment is available to us as an ecosystem service. If it's not available as an ecosystem service, we have to produce it artificially and it takes money. So in this way, we can have a good HDI at a low GDP if our ecosystem is good. So if you have a high biocapacity, if you have a high ecological service, we can achieve a certain GDP, HDI at a lower GDP level. That is what Cuba did. The other thing is, suppose there is a lot of inequality in our society. When we say per capita GDP, it is just an average, isn't it? Within that, some people will be very poor and some people will be very rich. The very rich people will not have a much better standard of living. But for the same average, when there is a lot of inequality, there are a lot of very poor people who will be having much less than the minimum per capita income required for a decent living. So for a given per capita GDP, if there is less inequality in society, we will have a higher HDI. Hello. Right? So we cannot, yes, hello? Yeah, we can hear you. Yeah. So our priority should not be GDP growth, and especially pursuit of GDP growth should not be by giving more and more incentives for the rich to increase their wealth, because that is increasing inequality and it is reducing the HDI, isn't it? If the way to increase GDP is giving incentives for the rich to increase their wealth, if that is the driving force for increasing GDP, all the benefits of higher wealth go to the people who are already rich. So that doesn't increase the HDI of the country. And that GDP itself will be achieved at the great environmental cost. Actually, measuring wealth in terms of GDP is problematic, because our true wealth is the ability of the earth to sustain life, but that is not measured in money. In GDP, we are only increasing wealth that is measured in money at the expense of our true natural wealth. Right. So Yeah. most of the GDP increase in the world has taken place at the expense of this, and that is what has made the world unsustainable. There are some questions here in the chat box. Why agriculture is always in bad condition? Is this with respect to the question, what I said, that when fossil fuels are the primary resource for conducting agriculture or industry, I said agriculture cannot have the same profit potential as other sectors, because in other sectors, if there is no restriction on fossil fuel use, if you want to increase the production, increase profit by increasing production can be done by a proportionate increase in inputs without a proportionate increase in workforce, without a proportionate increase in workforce, and without a proportionate increase in land use. Whereas in agriculture, that is not possible, right? In a given amount of land, the production that can take place is limited by how much photosynthesis is possible. By putting more inputs, you cannot increase the production proportionately. So in this way, other industries running on fossil fuels have a greater profit potential. So if profit maximization is also the main consideration for people to choose their vocation, then most people would like to leave agriculture and go to other sectors. Now, if we are to provide a level playing field,
then this kind of unsustainable use of non-renewable resources should be taxed, so that you provide a level playing field for agriculture. Not only that, that is the only way to discourage exhaustion of non-renewable resources, as well as the accompanying effect on the environment, right? The revenue earned by such things can be used for supporting agriculture as well as supporting eco-restoration. Eco-restoration should be our priority. So I don't see any other policy by which the government can prioritize eco-restoration. The only way to prioritize eco-restoration is to discourage everything that reduces the biocapacity of the earth, and through the taxes, and use that revenue for supporting activities which restore the ecology, right? Tax all activities that reduce the biocapacity and use that revenue for funding other activities that restore the biocapacity. Okay. I think, this Shirichi, was... we have yes. We have Mr. Shivnarayan Sharma with us. I think he wants to ask you something. He's raising his hand. Sorry. Yes. श्री कुमार जी से बहुत ही मतलब जो बोला है उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्रांतिकारी विचारों के साथ उन्होंने अपनी चीज को सामने रखा है, और ये अगर इसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर चलें, तो पूरे देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है। इसको दूसरे तरीके से और भी तरीके हैं इसमें, मतलब इसको हम इम्प्लीमेंट करें अगर, कि अगर आप देखेंगे, आप गांव में सब्जियां पैदा करते हैं, जी पैदा होकर के शहर में आती है, तो शहर में आके 30 से 40% सब्जी का कचरा निकलता है जो गटर में जाता है और जगह जगह उसका खराबी यानी प्रदूषण पैदा करता है। जबकि यही कचरा अगर गांव के गांव में निकल जाए तो वहां पर खाद के भी काम आ सकता है, मवेशी के भी काम आ सकता है, और वहां पर उस कचरे को निकाल कर सब्जी की कटनी छटनी करके शहरों में पहुंचाया जाए तो काफी व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है इन चीजों का। ऐसे बहुत से मतलब ऐसे काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं। हमें औद्योगिकरण करने की अपेक्षा अगर हम लोगों को पहले भोजन की समस्या जो हमारी इतनी बेहतर मतलब कृषि के क्षेत्र से हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, भोजन भी दे सकते हैं, या इस टाइप के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ चीजें ऐसी है इसके अंदर, अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान देंगे, हमारे पास कई है प्रोजेक्ट इस टाइप के, कि आप गांव में एनर्जी पैदा कर सकते हो विदाउट सोलर का सिस्टम हम ले रहे हैं, कहाँ से, चाइना से ले रहे हैं, वहां से इंपोर्ट करके हम सिस्टम बैठा रहे हैं। वहीं पर जो चीज आपके यहाँ उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके भी आप एनर्जी पैदा कर सकते हो, और इतनी एनर्जी पैदा कर सकते हो कि उस एनर्जी से आप स्टोरेशन वगैरह जो हम जैसे अगर मान लीजिए हमने सब्जी काट के गाँव में रखी, तो काट के रखने के बाद उसको स्टोर करना है, उसको फ्रीजिंग करना है, फ्रीजिंग करने के सिस्टम को तैयार कर सकते हैं बिना प्रदूषण के। हम ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इनका बहुत अच्छा लगा हमें श्री कुमार जी का, और मुझे लगता है इस चीज को अगर हम वास्तव में अगर ये सोशलिस्ट पार्टी जमीन पर उतर के काम करें, जमीन पर उतर के इन चीजों को ये करें। अभी जैसे किसान के मामले में किसान बिल लाया गया, इस किसान बिल को हमें ये समझाना होगा कि ये बिल का नुकसान किस तरीके से है, ये बिल हमें किस तरीके से गुलाम बनाएगा। वो चीजें हमें इनको जो आम जनता को जो समझ नहीं रही है कि वो किसान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, वो लोग उनको ये समझाना होगा कि किस तरीके से रिलायंस या अंबानी जैसे लोगों ने सरकारी क्या बोलते कानून का इस्तेमाल करके लोगों को गुलाम बनाया है। अगर आप देखेंगे रिलायंस कंपनी ने आईपीसीएल कंपनी को, आईपीसीएल हमारी देश की पेट्रोकेमिकल्स कंपनी थी जो 1972 में बड़ौदा में प्लांट डाला गया था बहुत बड़ा, 1979 से शुरुआत हुई थी इसकी। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट निकलता था एलडी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये प्रोडक्ट जो निकलता था उस टाइम ये इतना मतलब बेहतर था जिसकी वजह से मशीनें पूरे देश में इतने व्यापारी, इतनी मशीनें लगी थी, लोगों को बहुत सारा काम मिल रहा था और बहुत सस्ते में ये सब चीज हो रही थी।
इस यहाँ पर एक पीपी पॉलीप्रोपिलीन भी एक मटेरियल आता था जिसका उपयोग होता था खाद्य सामग्री में, जो ट्रांसपेरेंसी था, जिसकी कीमत ज्यादा थी, और उसको क्या बोलते हैं इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। रिलायंस अंबानी समूह ने क्या किया, इसका कस्टम ड्यूटी मतलब इसका लाइसेंस लेकर के कस्टम ड्यूटी को खत्म वो कर दिया, मतलब उनको फ्री बहुत कम में मिला। तो उसने क्या, इसने आईपीसीएल को खत्म किया। उसके बाद उसने उस पीपी के मटेरियल को एलडी के मटेरियल से भी सस्ते में मार्केट में उपलब्ध कराया, और परिणाम ये हुआ कि आईपीसीएल की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई। आईपीसीएल बिल्कुल कोड़ी के मॉल में उसने खरीदा 2002 में डिसइन्वेस्टमेंट करके ये सारी चीजें। तो इन चीजों को हमें आम जनता को समझाना है कि कानून का, सरकार के भ्रष्ट नेताओं का उपयोग करके ये कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां किस प्रकार से कानून का उपयोग करके हम लोगों को लूट रही है, और वही काम आज ये किसान बिल का इस्तेमाल करके करेगी। इससे हमें हम सबको एक बराबर पॉइंट टू पॉइंट, जैसा इन्होंने श्रीनिवास जी ने बताया, बिल्कुल इसी चीज को इस तरीके से आम जनता के सामने जाए, बिल्कुल एक पेपर में, सिंगल पेपर में जाना चाहिए, और ये बैक फुट पे ब्लॉक पर रहना चाहिए, वहां पर लिंकिंग होनी चाहिए, सिंगल पेपर में समझाया जाना चाहिए, जिसे हमें बांटना चाहिए, लोगों को घर घर में सब जगह पहुंचाना, पूरे उसमें फैलाना चाहिए कि किस तरह लूटने का काम कर रही है रिलायंस जैसी कई कंपनियां हैं जो हमारे देश को सरकारी कानून का फायदा उठाकर लूट रही है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूंगा। बहुत अच्छा श्रीनिवास श्री कुमार जी ने कहा है, आप लोग इसमें आगे बढ़िए। हाँ सर, थैंक यू शिव जी, वेरी वेल सेड। ऑल्सो श्री जी, केतन जी ने क्वेश्चन पूछा है हमसे। So Ketan ji, would you like to ask this question yourself? Yeah. How much investment is required to shift from current agricultural practices to regenerative agriculture? Actually, the main thing is shift of people itself. Shift of people. So I can't put a figure to it. I cannot say how much investment is required. See, most of the investment will be in terms of physical work. It is just that people have to shift from industrial sector. I mean, just as people have migrated from agriculture to industry and from rural area to urban areas in search of livelihoods, but these are the kind of livelihoods that were available in an economy driven by fossil fuels. In a more sustainable economy, those livelihoods will not be available. So people have to shift from cities to villages and from other sectors of the economy to agriculture. And agriculture, as I said, if we do ecological agriculture, its employment potential will increase. In any case, the employment potential of agriculture is much higher than that of any other industry, of course, because they try to employ as few people as possible. As few people as possible, that means all industries that we have developed in pursuit of ecological growth are highly resource intensive and not employment intensive. If we are to make our society more equitable and also control climate change, we have to prefer industries or livelihoods in all production, industrial or agriculture, that are less resource intensive and more employment intensive, right? That is a shift needed. So it cannot be measured in money. Right. Hello. So, sir, I just had a follow-up question to that. So there will, like you said, that this phase is the phase of transition, and when during the transition phase, obviously the yield will be low from agriculture, because it will take some time for the soil to recover, and the entire process will take some time. Yes. So that is the phase in which I think government will need to provide some subsidies or relief to the farmers. Now, during this transition phase, this relief that we are talking about, so will it come only from government's effort, or will private players also need to participate in this process? Because like we are talking about, country of the scale of India, so probably there will be need of like maybe some kind of PPP model during this transition phase. Okay. I don't think any private player will be interested in it because it won't increase their profit.
PPP models will be there only when there is profit potential for them, right? So this task can be done only as a social movement or with support from government. Government is not listening to us now because the government is listening only to the corporates. And that is why all its policies are just the opposite. Our demand on the government can be strong enough only when we have Hello. I think we lost Shiriji again. Hello. I think we lost Shiriji again. Also, we are running out of time. So Ketanji, I think you have got your answer. Yeah, Right. yeah, sure. Yeah. So let me conclude the session. So it was, I would say, the most enlightening session of our series. Shiriji has quite rightly explained the issues with the present bill, be it that the APMCs, the mandis, the mandis will be depleted. They will dissolve. The farmlands will be taken over by the corporates. The food prices will be more largely will be controlled by the corporate players, and the public distribution system will be weakened. And also he introduced us to the concepts of ecological footprint and biocapacity. And right now almost all the countries of the world, they are consuming resources 1.7 times than our bio capacity, the resources which the earth has. So this is the reason for the unsustainability and inequitable society. And he strongly recommended that if you want to make an equitable society, if you want to go for a sustainable society, then we have to opt for a model of degrowth. Degrowth in the sense that sustenance for the citizens will be sector. This will not be able to curb the pollution, but will also help to prolong our sustenance on this very planet. So I would like to thank Shri Kumarji for taking out time from his busy schedule to be with us and enlightening us about the how the farm bills are impacting the sustainability and inequity. And also I thank all the participants who are with us and who raised the valid questions, and I hope they got their answers. So thank you for joining us. Namaskar.